Do you know what is act? What is appropriation bill? What is bill? How to explain the term budget? अगर आपसे कोई पूछे कास्टिंग वोट क्या होती है, ओके, what is cut motion? All right. Today's video I'm going to discuss about important parliamentary terms. ये टर्म्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप पार्लियामेंट्री टर्म्स को जानने के लिए इच्छुक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जस्टिस जंक्शन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। If you don't subscribe my channel, then first subscribe my channel and press the bell icon. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट की। क्या होता है एक्ट? A bill passed by both houses of parliament and assented to by president. यह कानून का एक विधेयक होता है जिसको दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। यदि यह बिल संसद के दोनों सदनों में मान्यता प्राप्त करता है और फिर राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करते हैं तो वह एक कानून बन जाता है और यह देश के लिए बाधित हो जाता है। इसका मतलब है कि यह कानून अब विधि के अनुसार लागू हो जाता है और सभी लोगों को इसका पालन करना पड़ता है। An act is a legal term that refers to a formal written statute or law that has been enacted or passed by the legislative body, such as parliament. Acts are a fundamental part of a country legal system and serves as a binding rules and regulations that governs the various aspects of society. These laws are created to address a wide range of issues from criminal offences and civil matters to administrative procedures and regulatory frameworks. Once an act is passed and become law, it is enforceable and applicable to all the individuals and entities within the jurisdiction of the legislative body that enacted it. Now we are going to discuss about adjournment motion. स्थगन सूचना, इट्स ए पार्लियामेंट प्रोसीजर। यह एक पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से ऑनलाइन विधायिका प्रक्रियाओं का समय समय पर रोकने के लिए किया जाता है ताकि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को चर्चा करने का मौका मिल सके। इसका मतलब है कि यह पार्लियामेंट्री सत्र को आपातकाल में रोकने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि किसी महत्वपूर्ण और सार्वजनिक मुद्दे को विचार करने का मौका मिल सके। Adjournment motion is a parliamentary procedure used to temporarily pause or suspended ongoing legislative proceedings, especially in online or virtual sessions, so that members of the parliament can discuss an urgent and important matter of public concern. It allows the lawmakers to set aside the current agenda and focus on addressing an immediate issue that is significant public importance. Once the adjournment motion is approved, the parliament takes a break from its regular business to have dedicated discussions on the pressing matters. Adjournment motion ensure करता है urgent issues को proper attention मिले और regular proceedings को resume किया जाए for a particular period of time. Now we are moving towards next parliamentary term, which is appropriation bill. What is appropriation bill? यह एक प्रस्तावित कानून है जो सरकार को जनता के पैसे का विशेष उद्देश्यों के लिए खर्च करने की अधिकृति देता है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन की रूपरेखा देते हैं। यह बजट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विधिक उपकरण होता है। इसमें उन विशेष उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निरूपित किया जाता है जिनके लिए सरकार को जनता के पैसे का खर्च करने की अनुमति होती है, जैसे कि स्थानीय विकास परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा कार्यक्रम। यह बिल बजट समय के पैमाने पर लागू होता है ताकि सरकार के खर्च को स्वचालित रूप से व्यवस्थित किया जा सके और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जा सके। It's a crucial legislative instrument in budgetary process. It is proposed law that authorizes the government to spend public funds for specific purposes, outline budget allocations for various government agencies and programs. It's an important part of budget process because it outlines where all the money should be go and what it should be used for. So, it's like a plan that says this much money goes here and that much goes there to make sure everything is spent properly and for the right reasons.
Now we are moving towards next parliamentary term, which is bill. What is bill? विधेयक. यह एक प्रस्तावित कानून का टुकड़ा होता है जिसे विधायिका संघ को विचार और मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मौजूदा कानूनों में किए जाने वाले विशिष्ट परिवर्तन या नए नियमों की जानकारी दी जाती है. एक बार मंजूरी प्राप्त होने पर विधेयक एक आधिकारिक कानून बन जाता है. इसे ऐसे सोचें कि यह एक प्रस्ताव है जिसमें नए कानून की डिजाइन या पुराने कानूनों में परिवर्तन करने की जानकारी होती है और सरकार के विधायिका संघ में उसका मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक बहस और मंजूरी की जाती है. एक बार मंजूर हो जाने पर विधेयक एक आधिकारिक कानून बन जाता है. A bill is proposed piece of legislation presented to legislative body for debate and approval, outlines specific changes or additions to existing laws. Once approved, a bill becomes an official law. अब हम डिस्कस करेंगे बजट. बजट एक सालाना वित्तीय आवंटन और योजना होती है जो किसी देश में विधायिका संघ में प्रस्तुत और विचार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सार्वजनिक धन को कैसे जुटाया और कैसे खर्च किया जाएगा ताकि विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके. इसे सिर्फ इस तरह सोच सकते हैं कि एक ऐसा प्लान है जो दर्शाता है कि सरकार कैसे पैसे जुटाती है और कैसे वो पैसे कहां और कैसे खर्च करेगी ताकि देश के विभिन्न आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके. It's an annual financial allocation and plan for the government expenditures and revenues presented and debated in country's legislative body, outline how public funds will be raised and spent to meet various national needs and priorities. Budget is like a yearly money plan for the country. It's a plan that the government makes to decide how much money it will spend and where it will be get that money from. ये एक्सप्लेन करता है कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लेके आती है और कहाँ पे खर्च करेगी, कैसे एक नेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगी. इट्स लाइक अ बिग फाइनेंशियल रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द ईयर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्लियामेंट्री टर्म विच इज कास्टिंग वोट. व्हाट इज कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट एक ऐसा वोट है जो कि किसी मुद्दे पर बराबर संख्या में वोट दिए जाने पर सभी ओर से बराबर बहस के समय प्रदेश में अध्यक्ष जैसे अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जाता है ताकि एक निर्णय पर पहुंचा जा सके. उदाहरण के लिए, यदि किसी सभा में एक मुद्दे पर बराबर संख्या में वोट दिए जाते हैं तो अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी अपने वोट के माध्यम से निर्णय की ओर मदद करते हैं. इसका मतलब है अगर किसी मुद्दे पर बराबर वोट मिलते हैं तो अध्यक्ष का वोट निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है. इट्स ए टाई ब्रेकिंग वोट एक्सरसाइज्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हेन देयर इज इक्वल नंबर ऑफ वोट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इशू, हेल्पिंग टू रीच अ डिसीजन. फॉर एग्जांपल, द वोट कास्ट बाय चेयरमैन. Imagine if people are voting and half says yes while the other half says no. When there is tie like this, the person in charge use their casting vote to make final decision. अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन एक पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है जिसमें एक सदस्य आमतौर पर सत्र के दौरान तुरंत महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में लाने की मांग करता है, जिसका स्पष्टीकरण या सरकारी कार्यवाही पर विचार करने के लिए किया जाता है. इसमें सदस्य सरकार से उस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगता है और सरकार से कार्यवाही की मांग करता है ताकि उस मुद्दे पर समझौता हो सके या सरकार इस पर कुछ कदम उठा सके. प्रोसेस के माध्यम से सदस्य सभी के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर विचार करने का मौका प्राप्त करता है ताकि उसे सरकार से उचित स्पष्टीकरण मिल सके और निर्णय लिया जा सके. It's a parliamentary procedure where a member requests attention to urgent issue, typically during the session, to seek clarification or government action on that matter. Calling attention motion is like raising your hand in class to get your teacher attention in a parliamentary setting. It's when a member of the parliament asks for everyone focus on an important issue. It's a way to say, hey, we need to talk about this right now and we want the government to do something about it. It's a way for the parliament to address urgent matters and seek answers or
action from the authorities. Now we are going to talk about next parliamentary term, which is censor motion. संतोषन प्रस्तावना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसद द्वारा सरकारी अधिकारी या संगठन के पूरे सरकार के खिलाफ आलोचना या तीखी सजा की एक औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें आमतौर पर उस मुद्दे पर विचार विमर्श होते हैं और मतदान होता है। यह मुद्दा सामान्यतः रूप से सरकारी अधिकारी या पूरी सरकार के प्रति न्यायिक दर्जा में होता है और इसका परिणाम स्वरूप उस मुद्दे पर संसद में चर्चा और मतदान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी क्रियाविधियों, नीतियों या अधिकारों के खिलाफ विरोध और आलोचना को सार्वजनिक रूप से जाहिर करना होता है। It's a formal expression of disapproval or criticism by the legislature against a government official or the entire government, typically resulting in a debate and vote on the matter. It's like an official way for the legislature to say that they don't approve of something a government official or the whole government has done. It's a formal way to criticize their actions. That's it for today. Thank you for joining us today to learn about parliamentary terms. Understanding how our government works is essential for active citizenship. If you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe for more educational content. Stay informed, stay tuned, stay engaged, and remember that your voice matters in shaping our democracy. Until next time, keep exploring, keep learning, and keep participating in the democratic process. Goodbye.